Hello, students. How are you? I hope you all are good at your home and studying also. Okay. Stay at your home. Use sanitizer and mask whenever you go out. Okay. Take care of your health. Okay. It's a rainy day. Okay. So today we are going to study the lesson number 9, pronouns of class 4th in English grammar mentor. Okay, so get ready with your book, open page number 45, lesson 9, pronouns. So student, what is pronouns? Okay, you know that what is noun? Noun is a name of a person, place, animal, or a thing. Okay, so here we will learn about the pronouns. Words used in place of nouns in a sentence are called pronoun. जो words noun की जगह पे use होंगे उसे कहते हैं pronoun. Okay, जो word noun की जगह use होंगे उसे कहते हैं pronoun. Read and observe the changes in the following sentence. Okay, Samir is a student. Samir likes cricket. You can see the statement. आप ये sentence को देख सकते हो कि Samir is a student. Samir likes cricket. Now observe the same sentence again. इसी sentence को फिर से देखिए. Samir is a student. ही लाइक्स क्रिकेट. हम बार बार समीर का नाम न लिखकर हम समीर की जगह क्या लिखेंगे? ही. ओके, ही किसके लिए यूज़ किया गया है? एच ही कौन है? समीर के लिए यूज़ किया गया है. ओके, ही लाइक्स क्रिकेट. ओके, और अभी हमने आपको बताया कि जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पे यूज़ करेंगे उसे कहते हैं pronouns. Understood? So let's see some more examples. Sheila is a dancer. She is dancing on the stage. ओके, शीला इज़ अ गर्ल. शीला यानी गर्ल के लिए हम शी यूज़ करेंगे. द रैट इज़ इन द होल. इट इज़ वेरी स्मॉल. रैट, रैट क्या है? रैट इज़ द एनिमल. ओके, तो हम एनिमल और थिंग के लिए इट यूज़ करेंगे. ओके, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्टोरी बुक्स. चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्टोरी बुक्स. दे आर रीडिंग नाउ. चिल्ड्रन. ओके, प्लूरल, प्लूरल के लिए हम दे यूज़ करेंगे. ओके, the actor has great talent. Okay, so here actor is a, who is actor? A person, a boy, a man. He has won an award. Okay, now let's think and answer. Fill in the blanks with the suitable pronouns given in the box. Okay, now you'll tell me the answer. The milk is in the bowl. Dash is hot. Milk bowl में है और वो hot है, गर्म है. तो milk क्या है? मिल्क इज़ अ थिंग, एक वस्तु है. ओके, सो हम क्या यूज़ करेंगे? इट इज़ हॉट. नंबर 2, द थीव स्टोल द मनी. डैश रैन अवे. नाउ थीव्स. थीव्स कौन है? चोर. एक नहीं है, बहुत सारे चोर हैं. ओके, तो बहुत सारी वस्तु के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे? दे. ओके, THEY, दे. सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम दे यूज़ करेंगे. ओके, दे रैन अवे. वह लोग भाग गए. अंडरस्टूड? गर्ल के लिए शी, बॉय के लिए ही, थिंग और एनिमल के लिए इट, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो दे. ओके, सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 46. Number 3, the boy is absent today. Perhaps he is ill. Boy is absent. Boy के लिए हम he यूज़ करेंगे. Number 4, my mother is very tall. She likes to wear sarees. अब mother कौन है? Okay, mother, girl, woman के लिए हम she यूज़ करेंगे. Okay, now the kinds of pronouns. There are 4 kinds of pronouns, that is personal pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, and interrogative pronouns. So what is personal pronouns? Personal pronouns are used for particular persons or things. Personal pronoun particular person या things के लिए use होते हैं. Okay, the first person who is are speaking, the second person who is are spoken to, and the third person are the person who is are spoken about. Okay, the personal pronouns, subjective pronoun, objective pronoun, and the possessive pronoun. So what is that? Study the following table. Okay, so you can see the table. You have to learn this table. Okay, the subjective pronoun singular plural, objective pronoun again singular plural, and the possessive pronouns again singular and plural. The first person is I, and for its plural is we. Second person you, plural you. Third person he, she, it, plural they. Objective pronoun me, plural us. Singular you, second person you.
plural. And the third person in objective pronoun is her, him, it, and the plural will be them. So and the possessive pronoun will be in the first person mine, plural will be ours, and second person yours, and the third person the singular will be his, hers, and plural will be theirs. Okay, so आपको ये आपको learn करना पड़ेगा. Okay, so let's move to page 47. So on page 47, you have to remember the subjective pronoun is the doer of the action, objective pronoun is the receiver of an action, and the possessive pronouns indicate the position. Okay, let's think and answer. Rewrite the following sentences by replacing the pronouns with the personal pronouns. Number 1, Sita and Geeta went to the circus. Sita and Geeta saw many jokers. ओके सो अब आप ये फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हो कि सीता और गीता की बात हो रही है, सर्कस में चले गए वो लोग और उन्होंने बहुत सारे जोकर्स देखे. ओके तो सीता और गीता का बार बार नाम न आए उसके लिए हम उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे. नाउ सीता और गीता कौन है, दो गर्ल्स है. ए वन गर्ल नहीं है, वन गर्ल होती तो हम शी लिखते, लेकिन यहाँ पे टू गर्ल्स है तो टू गर्ल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा हो तो दे यूज़ करना है. ओके सीता एंड गीता वेंट टू द सर्कस और फुल स्टॉप फिर लिखेंगे दे सॉ मैनी जोकर्स. ओके नंबर 2, तरुण इज़ अ बिजनेस मैन. तरुण इज़ गोइंग टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप. ओके सो तरुण इज़ अ बिजनेस मैन, आंसर में क्या लिखोगे, तरुण इज़ अ बिजनेस मैन फुल स्टॉप. फिर से तरुण का नेम आया है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तरुण इज़ अ मैन. ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ गोइंग टू दिल्ली. ओके नंबर 3, the animals are in a circus and the animals are tired after the show. सो आंसर विल बी द एनिमल्स आर इन अ सर्कस एंड फिर से एनिमल्स का नेम आया है तो हम क्या लिखेंगे, दे आर टायर्ड आफ्टर द शो. ओके नंबर 4, द डॉग हैड अ बोन इन हिज माउथ. द डॉग ड्रॉप द बोन. सो आंसर विल बी द डॉग हैड अ बोन इन हिज माउथ. अब डॉग के लिए क्या यूज़ करना है, इट, IT, इट. ओके इट ड्रॉप द बोन. Number 5, Sarita did not go to school because Sarita was not well. So answer will be Sarita did not go to school because फिर से सरिता का नेम आया है, शी इज़ अ गर्ल है ना, तो गर्ल के लिए क्या यूज़ करेंगे, शी वॉज नॉट वेल. ओके understood. So let's move to B question. Fill in the blanks with the suitable personal pronouns. Mother went to the market dash bought a packet of chips. तो मदर के लिए क्या यूज़ करेंगे, शी, SHE, शी. नंबर 2, द कैट इज़ वेरी स्मॉल डैश इज स्टक ऑन द बालकनी. इट इज स्टक ऑन द बालकनी. कैट के लिए हम इट यूज़ करेंगे. ओके नंबर 3, द चिल्ड्रन आर एंग्री बिकॉज डैश आर नॉट एबल टू सी द मैच. चिल्ड्रन के लिए क्या यूज़ करेंगे, दे आर नॉट एबल टू सी द मैच. Number 4, John wants to play Ludo but Dash is not able to find the dice. John के लिए क्या यूज़ करेंगे, he is not able to find the dice. Okay, so let's move to page 47. So open page 48, 47 we have already completed. So on page 48 we can see the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to point out the object near or far in the singular or a plural form. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किस लिए यूज़ होते हैं कि जो पास और दूर की जो वस्तुएं हैं सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में उसको पॉइंट आउट करने के लिए. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हमें दीज दैट दीज दोज का यूज़ करना है. ओके ठीक एन आंसर, अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नंबर 1, दिस इज़ माई बैग. ये मेरा बैग है, कौन सा बैग, ये वाला. ओके तो दिस हम क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो यू अंडरलाइन दिस. नंबर 2, दैट इज़ हर टॉय. सो अंडरलाइन दैट, वो वाला टॉय मेरा. ओके दैट टॉय जो दूर पड़ा है वो वाला टॉय. ओके दैट. नंबर 3, दीज आर स्मॉल बलून्स. ये सब बलून्स क्या है, स्मॉल है. सो अंडरलाइन दीज. नंबर 4, दोज आर ब्यूटीफुल हिल्स. तो अंडरलाइन दोज. नंबर 5, द गर्ल इज़ इन द रूम. दिस इज़ हर ड्रेस. सो अंडरलाइन दिस. द डॉग इज़ नॉट हियर. दिस इज़ द डॉग्स कैनल. अंडरलाइन दिस. नंबर 7, दोज आर वेरी नॉटी गर्ल्स. कौन सी गर्ल्स नॉटी गर्ल्स है, दोज गर्ल्स, वो वाली जो दूर खड़ी है. ओके दोज, अंडरलाइन दोज. नंबर 8, दैट इज़ अ गोल्डन रिंग. सो अंडरलाइन दैट.
Number 9, these are very spacious room. So underline these. And number 10, this looks like an old monument. Underline this. Okay. Reflexive pronoun. When the subject of the sentence does something to itself, we use a reflexive pronoun. जब sentence का subject अपने आप ही कुछ काम करता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. भी हम उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ओके. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज समथिंग टू इटसेल्फ we use a reflexive pronoun. Okay. Example, the boy is washing the clothes himself. The boy, एक लड़का अपने क्लोथ्स कैसे खुद ही वॉश कर रहा है. ओके. तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपना वर्क कुछ कर रहा है, वो अपने आप कर रहा है. ओके. आई लव माई सेल्फ. शी डज ऑल टास्क हर सेल्फ. वो अपना सारा काम कैसे कर रही है, खुद कर रही है. ओके. फादर इज़ ड्राइविंग द कार हिमसेल्फ. फादर अपने आप कार ड्राइव कर रहे हैं. ओके. तो हियर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज समथिंग टू इटसेल्फ. ओके. दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So reflexive pronouns are formed by adding self or selves to the pronouns. Example, himself, itself, herself, yourself, myself, yourselves, ourselves, themselves. Okay. So think and answer. Let's move to page 49. So on 49, you can see the remember points. Reflexive pronouns are formed by adding self or selves to the pronoun. So let's think and answer. Fill in the blanks with a suitable reflexive pronoun. वी विल बाय द टिकट्स आवर सेल्फ. हम अपनी टिकट्स खुद खरीदेंगे. ओके. वी के लिए हम आर सेल्स यूज़ करेंगे. आई विल डू इट माई सेल्फ. मैं मेरा अपने आप करूँगा. ही हैज़ टू फिनिश द वर्क हिमसेल्फ. ही के लिए हिमसेल्फ यूज़ करना है. द डॉग टू अवे द बोन इट सेल्फ. डॉग इज़ अ, हम डॉग के लिए इट यूज़ करते हैं. ओके. एनिमल के लिए, थिंग के लिए तो इट यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे इट का इट सेल्फ हो जाएगा. हैव यू ड्रॉन द पिक्चर योर सेल्फ. यू का योर सेल्फ. द चिल्ड्रन विल ट्रैवल बाय दैम सेल्स. यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है. प्लस तो प्लूरल के लिए हम दे यूज़ करते हैं, तो दे के लिए दैम सेल्स. द गर्ल इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इट हर सेल्फ. गर्ल के लिए हम ही हर यूज़ करते हैं, तो हर सेल्फ. ही ऑफन टॉक्स टू हिम सेल्फ. ओके. बॉय के लिए हम ही यूज़ करते हैं, तो ही का हिम सेल्फ. आई लव माई सेल्फ. मदर एंड फादर कुक फूड themselves. मदर एंड फादर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. ओके. तो प्लूरल के लिए हम दे यूज़ करते हैं, तो दे में themselves यूज होता है. ओके. So let's move to fourth point, that is interrogative pronoun. Words which are used for asking questions are called interrogative pronoun. जो words question पूछने के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं interrogative pronoun. For example, who, whose, whom, what, which. Who, whose, whom are used to ask question about the person. Who, whose और whom क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं. किसके लिए, पर्सन्स के बारे में. वॉट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स. वस्तु के लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसमें वॉट यूज़ होता है. एंड विच इज़ यूज टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन्स. पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के लिए विच यूज़ करना है. ओके. क्वेश्चंस थिंग्स के लिए हमें वॉट यूज़ करना है, एंड पर्सन और क्वेश्चंस के लिए हमें ओनली पर्सन्स के लिए हमें हु, हुज और हुम यूज़ करना है. ओके. सो लेट्स मूव टू लास्ट पेज, दैट इज़ 50. So on page 50, you can see the fill in the blanks with the suitable interrogative pronouns. Okay. Number 1, dash is your favorite actor. Answer will be, who is your favorite actor. आपका favorite actor कौन है. Okay. पर्सन के लिए पूछ रहा है तो हमें who यूज़ करना है यहाँ पे. नंबर 2, dash is the color of the sky. What is the color of the sky. Okay. हमें यहाँ पे यूज़ करना है what. Okay. कोई थिंग के लिए. नंबर 3, डैश इज़ बेटर शर्ट. विच इज़ बेटर शर्ट, कौन सी शर्ट अच्छी है. नंबर 4, होम डिड यू गिव द एनवलप. आपने एनवलप किसको दिया, उसके लिए हमें यूज़ करना है होम, WHOM. नंबर 5, हु इज़ स्टैंडिंग नियर द कार. कार के पास कौन खड़ा है, पर्सन के लिए पूछ रहा है. ओके. हु यूज़ करना है. नंबर 6, विच इज़ दिस कार. ये कार कौन सी है. ओके. नंबर 7, वॉट आर यू लुकिंग फॉर. आप क्या ढूंढ रहे हो. नंबर 8, whom डू यू वॉन्ट टू मीट नाउ. आपको अभी किससे मिलना है. नंबर 9, हु इज़ दैट ओल्ड मैन. वो ओल्ड मैन कौन है. नंबर 10, वॉट आर यू डूइंग हियर. तुम यहाँ क्या कर रहे हो. ओके. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो see this video again and again and try to understand it. If you have any problem you can ask me.
Okay, so goodbye.